Today's topic is Piaget's theory of cognitive development. We will see series-wise the stages that a person goes through in the phase of cognitive development. First of all, we need to understand that what is meant by cognition. Cognition is basically derived from the Latin word cognoscere, which means to know, to recognize, and to conceptualize. यानी कि हमने ये चीज़ें while giving the brief introduction of cognitive development, we made this very clear that cognitive development basically relates to understanding of the activities of your environment, of your own self, to know, to intellectual development को हमने cognitive development की sense में describe किया था. And when we talk about a cognition basically आपके एक mental action है. It is the process of acquiring a knowledge and understanding through experience and senses. यानी कि आप जो knowledge acquire कर रहे हैं उसकी वजह से जो उस दौरान में mental सारा process हो रहा है और जो आप understanding develop कर रहे हैं, that basically is known as a cognition. Cognitive development क्या होती है? It is simply the ability to think and to understand. आपकी एक ability emerge करना start करती है with when your body develops, when you physical development के साथ साथ जिस टाइम आपकी understanding develop होना start होती है, आप acquire करते हैं different जैसे जैसे वो complexity उसकी बढ़ती है, आप reasoning abilities को acquire करते हैं, problem solving abilities आपकी increase करती हैं. Is the process by which people's thinking changes across a lifespan. यानी कि आप कैसे नई चीजें सीखते हैं, उनको understand करते हैं, उनको अपनी life में apply करते हैं. That is basically all related to cognitive development. Piaget studied cognitive development by observing children in particular to examine how their thought process changed with age. It is the growing apprehension and adaptation to the physical and social environment. यानी कि आप किस तरह से अपनी changing social environment को अपने आसपास की जो फिजिकल एनवायरनमेंट है आपके, आप किस तरह उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप किस तरह से उसके बारे में पहले इंक्विजिटिव होते हैं. व्हाट थिंग्स दैट यू थिंक आर स्ट्रेंज और जिनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिस टाइम आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं आप उसके बाद वैसे उनके साथ अडेप्ट करते हैं. एंड दिस बेसिकली इज द होल डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. Now, how does cognitive development occur? First of all, एक तो ये कि एक gradual process है, एक gradual और एक serial wise unfolding orderly changes हैं जो कि आप जिसकी वजह से आपके mental processes जो हैं वो with age with development ज़्यादा complex और sophisticated बनते हैं. ठीक है, अब आपके mental processes कौन से हैं? यानी कि your sensations, perceptions, your memory, your thinking, आपकी intellectual abilities, आपकी intelligence, ये सारे आपके cognitive process, आपके mental processes हैं. Then cognitive development की वजह से इन processes में मजीद accuracy, complexity और sophistication आती है. The essential development of cognition is the establishment of new schemes. अच्छा, हम इनके अंदर कुछ concepts अभी पढ़ने वाले हैं. वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे. द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट कॉग्निशंस कि वो किस तरह से डेवलप होती हैं और आपकी जो प्रोसेस है पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो किस तरह से चेंज होता है. तो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. कॉन्सेप्ट्स आपके पाए जाते हैं स्कीम्स में. ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू स्कीम्स ताकि हम ग्रेजुअली उन चीज़ों को डिस्कस कर लें ताकि बजाय कि मैं यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करूँ, आई शुड एक्सप्लेन देम इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके, स्कीमा इज एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि आप एक दुनियावी चीज को जिस तरह अंडरस्टैंड करते हैं वो आपका स्कीमा कहलाता है. सिंगुलर स्कीमा एंड प्लूरल इज स्कीम्स. आपकी स्कीम्स में कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स अबाउट द आउटर वर्ल्ड, द एक्सटर्नल वर्ल्ड. उनके बारे में आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन क्या है, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट इन योर ओन व्यू. आपके अपने माइंड में उसका क्या एक इमेज मौजूद है, वो स्कीमा होगा. ठीक है, It helps an individual to understand the world they inhabit. वो जहाँ पे रह रहे हैं अपनी surroundings को समझना उनके लिए आसान होता है. These are the cognitive structures that represent a certain aspect of the world and can be seen as categories which have certain preconceived ideas in them. यानी कि अब these are broad domains. आपका concept formation का जो पूरा process है that is not something that happens abruptly. बहुत slowly, orderly, एक patterned behavior, patterned तरीके से वो चलता है. So when we talk about a scheme is a broad domain जिसके अंदर आपका एक relative concept जो है वो पाया जाता है. Now अगर हम बात करें जैसा यहाँ पे example given है कि my schema for Christmas includes Christmas trees, presents, giving money, green, red, gold, winter, Santa Claus, trees, etc. And हो सकता है कि कोई और जो इंसान हो उसका जो experience होगा, like for example हम अगर देखें तो like if
मेजॉरिटी ऑफ अस डू नॉट, हम लोग जिस तरह क्रिसमस नहीं मनाते, तो हमारे स्कीम के अंदर क्रिसमस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन जो लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं उनके माइंड में और ज़्यादा स्कीम जो है वो ब्रॉडेंड होगा। वाई? बिकॉज दे आर मोर फेमिलियर विद द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू क्रिसमस। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से लिखा हुआ है कि someone else may have an entirely different schema such as Jesus, birth, church, holiday, Christianity, etc. तो इस तरह से जो आपका इस तरह एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल you talk about animals. अब animals is a very broad concept. आपके पास हर तरह के animals है, तो आपकी animals की एक scheme होगी, उसकी पर सब schemes होंगी जिसके अंदर आप classify करते होंगे different animals को. For example, birds के अंदर आप different categories like animals की एक ब्रॉड स्कीम के अंदर आपके पास सब स्कीम्स होंगी जिसके अंदर बर्ड्स होंगे, कैट्स होंगी, डॉग्स होंगी, डिफरेंट जू एनिमल्स होंगे, आपके पास जो कार्निवोर्स होंगे, इस तरह के आपके पास सब स्कीम्स होंगी टू मतलब एवरीथिंग दैट यू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड हैज अ रिप्रेजेंटेशन इन योर स्कीम्स। ठीक है, एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो है वो क्लस्टर टुगेदर होते हैं आपके स्कीम्स में। अच्छा, then moving on to the next concept that we need to know is assimilation. अब assimilation is basically how schemes get changed over the time period, और किस तरह से आप नई आने वाली information को existing scheme के अंदर incorporate करते हैं, यानी कि it is using an existing scheme to deal with a new object or situation. यहाँ पे आपका जो भी नया आप knowledge acquire करते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, आप उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि स्कीमा चेंज नहीं होता, वो सिर्फ मॉडिफाई होता है। ठीक है, आप जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे के माइंड में एक डॉग की स्कीम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बट ही नोज दैट डॉग्स बार्क, डॉग्स हैव फर एंड दे हैव पॉज एंड दे वॉक ऑन ऑल फोर्स। अगर उस बच्चे ने अभी तक आज तक कोई कैट नहीं देखी, तो हो सकता है कि वो उस कैट की एक नई इंफॉर्मेशन है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहले उसको डॉग ही समझे, उसको जनरलाइज कर दे, बट देन उसको एसिमिलेट करना चाह रहा हो उसी स्कीम में। बट देन इफ ही अंडरस्टैंड्स देयर इज अ डिफरेंस, तो उसके लिए आगे वो नई स्कीम बनाएगा, उसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। लेट्स जस्ट गो ऑन विद द एग्जांपल जो हमने यहाँ पे मैंने कोट की हुई है। A 2-year-old child sees a man who is bald on top of his head and has long frizzy hair on the sides. To his father's horror, the toddler shouts, "Clown!" ठीक है, यानी कि उस बंदे ने, उस बच्चे ने आइडेंटिफाई किया, उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में है कि क्लाउन्स आर लाइक दिस, दे आर बॉल्ड एंड दे हैव हेयर एट द साइड ऑफ देयर दे आर बॉल्ड ऑन टॉप एंड दे हैव लॉन्ग फ्रिजी हेयर ऑन द साइड्स। तो उस बच्चे ने आइडेंटिफाई किया है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अकॉर्डिंगली कि ये एक क्लाउन है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, कि आने वाली नई नॉलेज को उसने फिट इन करने की कोशिश की अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में। Then comes the concept of accommodation. Now this happens when the existing schema does not work, ठीक है, and needs to be changed to deal with the new object or situation. यानी कि आपके जो already exist कर रहे हैं schemes, उनके अंदर नए आने वाली knowledge, नया आने वाला concept वहाँ पे आप incorporate नहीं कर सकते, आपको उसको assimilate नहीं कर सकते, आप cannot fit it in, तो इस वजह से आपको accommodate करना पड़ता है and the scheme has to be altered. आप एक नया schema बनाते हैं. It might be developed, for example, ये जो clown वाला incident है, the boy's father explained to his son that the man was not a clown and that even though his hair was like a clown's, he wasn't wearing a funny costume and wasn't doing silly things to make people laugh. अब ये जब बच्चे को explain किया गया है तो बच्चे के mind में ये चीज आ जाएगी कि okay, now it's not necessary कि इस तरह की जो look होगी वो एक clown की होगी, this is a person as well. तो यानी कि इस नए knowledge के साथ the child, the boy, he changed his existing schema and उसने अपने आइडिया को मजीद बेहतर बना के ये चीज डिफ्रेंशिएट की कि एक नॉर्मल बंदा किस तरह से होगा एंड एक क्लाउन किस तरह से होगा। तो उसने अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट, अकोमोडेशन का प्रोसेस जो है वो किया है। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। हम एनिमल्स की बात कर रहे थे कि द चाइल्ड हु हैज नेवर सीन अ कैट इन हिज लाइफ, ही हैज सीन अ डॉग। उसको क्योंकि उसने हमेशा एक डॉग देखा, उसको यही आइडिया था कि अगर ऑन ऑल फोर्स अगर एक एनिमल है और उसकी फर है और वो बार्क कर रहा है, ठीक है, तो the child knows कि all fours and furs might as well classify an animal as a dog. अब वो जब एक बिल्ली को लाइफ में फर्स्ट टाइम देखेगा अपनी डेवलपमेंट फेजेस में, तो हो सकता है कि वो उसको आइडेंटिफाई करे एज अ कैट, बिकॉज द कैट इज ऑन ऑल फोर्स एज वेल एंड इट हैज फर एज वेल.
तो द चाइल्ड माइट क्लासिफाई इट एज अ डॉग, ठीक है। बट जब वो अपनी आवाज लाइक वो जब म्यू करेगी या करेगा मेल कैट, तो जब वो म्यू करेगी तो उसको समझ आ जाएगी कि नहीं, दिस पर्टिकुलर एनिमल ही इज ऑन ऑल फोर्स, ही डज हैव फर, बट इसकी आवाज डिफरेंट है। इस चीज के साथ उसका नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, उसकी नई स्कीम बनना स्टार्ट होगी फॉर कैट्स, यानी कि फिर वो कैट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेगा और उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा जो डॉग्स का है उसमें अकोमोडेशन फिर हो गई है, ठीक है। Then equilibration. Equilibration is simply like when you try and आपका एक बच्चा जो है वो एक कॉग्निटिव स्टेज से जब दूसरी स्टेज पे जाता है, that is because of equilibration, यानी कि वो जब चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल he needs to maintain a balance, कि अपनी वो प्रीवियसली एक्वायर नॉलेज उसने एसिमिलेट की है उसको अप्लाई करना उसको आए और वो चेंज करना भी साथ साथ सीखे। ये नहीं कि वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज फ्रेम में ही हर चीज को अप्लाई करता रहे बट साथ में वो नया बिहेवियर ना सीख रहा हो। नाउ बेसिकली एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही तरीके से होती है। सो लाइक इक्विलिब्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इट बेसिकली एक्सप्लेन्स कि आपका एक बच्चा जो है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में प्रोग्रेस कैसे करता है। जब वो एक स्टेज की नॉलेज को एक स्टेज की डेवलपमेंट को एसिमिलेट कर लेता है और अकोमोडेशन भी उसके अंदर हो जाती है, देन ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर ये बैलेंस नहीं बनता तो आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्मूथली नहीं टेक प्लेस कर सकती। मूविंग ऑन, let's talk about the 4 stages of development. First one is sensory motor stage. It continues from birth to 2 years of age. The second one is pre-operational stage. It is a 4-year. It is from it is generally of 5 years. यानी कि second year से लेके 7th year तक, this is your pre-operational stage. Then we have third stage, concrete operational stage. It lasts from 7 years to 11 years. And then fourth one is formal operational stage, जो आपके adolescence से start होकर आपके adulthood तक रहती है। जो मेक श्योर कि आप लोगों को ये चीज समझ आ रही हो, यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर जिसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस जो हैं वो लिखी हुई हैं, यू मे बेटर असेस के आपकी इस स्टेजेस में कौन सी फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेज चल रही होती है। तो द फर्स्ट स्टेज इज द सेंसरी मोटर स्टेज। अब यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मीन्स सेंसरी मोटर बेसिकली रिलेट्स टू 2 कॉन्सेप्ट्स। एक है आपका सेंसरी like the sensory experiences and the second one is motor actions, यानी कि आप अपनी sensations के वजह से अपने motor actions को आपके sensations की वजह से आपके motor actions affect होते हैं, आप इन दोनों को आपस में coordinate करती हैं। यानी कि the infants construct and understand an understanding of the world by coordinating sensory experiences, यानी कि उनका देखना सुनना, all the 5 senses basically, with the motor actions, reaching, touching and जो उनके जनरली मोटर एक्शंस यानी कि उनकी जो मूवमेंट्स हैं, बॉडीली मूवमेंट्स हैं, ठीक है। इस स्टेज में 2 चीजें होती हैं। बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करते हैं, यानी कि उनकी मेमोरी जो है वो स्टार्ट होती है फॉर्म होना। दे बेसिकली रियलाइज कि अगर एक चीज उनके सामने, अगर इनिशियली आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे का, जब बहुत वो इन्फेंसी की स्टेज में, जब अर्ली स्टेजेस में होता है इन्फेंसी की, if a thing has been placed in front of him, the child will start playing with it and जैसे उसको उठा लिया जाए वो बच्चा भूल जाएगा। But with the passage of time, आप बच्चे के आगे कोई चीज रखें और वो उसको पसंद आए, उसके साथ खेलना स्टार्ट हो जाए and you take it away, तो बच्चा उसको कोशिश करता है ढूंढने की, 1-2 चीजें उठा के देखता है कि वो कहाँ है, उसको नहीं मिलती तो वो रोना शुरू होता है। यानी कि उस बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है कि एक चीज अगर आउट ऑफ साइट है तो इट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि वो अगर आपको नजर नहीं भी आए तो उसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब वो अपनी माँ का कॉन्सेप्ट है, जब अपनी वो माँ के पास है, माँ आस पास नहीं है, वो बच्चा the child is fine, उसको ये नहीं पता कि कोई है पास या नहीं है, लेकिन जिस टाइम उसको ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप कर देता है तो ही नोज के मैं कोई भी मोटर एक्शन करूंगा तो माय मदर विल बी देयर टू अकोमोडेट मी टू सी व्हाटएवर आई नीड। तो उस हिसाब से द चाइल्ड आइडेंटिफाइज दैट इफ द मदर इज नॉट प्रेजेंट अराउंड मी, शी डज एग्जिस्ट एंड शी विल बी देयर फॉर मी इफ आई कम्युनिकेट इट टू हर थ्रू माय मोटर एक्शंस, ठीक है। Now, infants progress from reflexive and instinctual actions at birth to the beginning of problem-solving, intellectual and symbolic abilities, language towards the end of the stage. बच्चा start करता है तो reflexes से,
यानी कि वो नॉर्मल उसकी आई मूवमेंट्स और उसकी जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं उसकी लाइक, अब इसकी एग्जांपल इस तरह से कि जब बच्चे के कान के सर के किसी एक साइड पे आप जाके कोई हल्की सी चुटकी बजा रहे हैं तो बच्चे का जो हेड है वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि उसके डिफरेंट रिफ्लेक्सेस हैं जिसके अंदर आपके काफी रिफ्लेक्सेस हैं जो कि आते हैं, जो कि चेक किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड उनके उन एक्शंस को के अकॉर्डिंगली देखा जाता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट परमानेंस है, उस बच्चे को जब भी डेवलप हो जाता है कि देयर आर थिंग्स, द चाइल्ड ही स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग कलर्स, बाय 2 years ऑफ एज वो बच्चा सिंबॉलिक इंटरेक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसके फिगरेटिव किस्म की लैंग्वेज होती है, वो सिंबल्स को यूज करते हुए अपनी बात को कन्वे करता है बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज। सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर मजीद 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस स्टेज के स्टार्टिंग में बच्चा सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज कर रहा है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना स्टार्ट करता है। द चाइल्ड इज केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि वो अब वर्ड्स और इमेजेस को यूज करना स्टार्ट हो जाता है, वो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट हो जाता है, वो सिंपल लॉजिकल जो रूल्स हैं उनको यूज करना शुरू करता है, ठीक है। अब इसकी 2 सब स्टेजेस हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 और 3 साल की स्टेजेस के अंदर डिवाइड की गई हुई हैं। फर्स्ट वन इज प्री कंसेप्चुअल स्टेज, यानी कि फ्रॉम 2 years ऑफ एज टू 4 years। यहाँ पे बच्चा ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जो यूज कर रहा होता है, जो उसकी वर्बल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो उसकी लैंग्वेज होती है, वो ईगोसेंट्रिक होती है। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये है कि वो चीज जो है वो बच्चे की अपनी सेल्फ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, यानी कि द चाइल्ड यूजेस सिंबल्स टू अंडरस्टैंड फॉर एक्शंस। अब वो एक टॉय डॉल को एक रियल बेबी की तरह परसीव करेगा, आइडेंटिफाई करेगा सिंस ही हिमसेल्फ एज अ बेबी, ठीक है। और या फिर क्या होगा कि वो मामा या बाबा का रोल प्ले करेगा उसके साथ। सेकंड, अभी इसको हम मजीद थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इकोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट अभी हम करते हैं, तो आई डिफाइन इट फॉर यू प्रॉपर्ली। सेकंड स्टेज आपकी जो इस सब स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, दैट इज इंट्यूटिव स्टेज। ये 4 years से लेके 7 years से रहती है। यहाँ पे आपकी जो स्पीच है वो काफी ज्यादा एलैबोरेट हो जाती है, आपका वर्ड बैंक जो है वो बढ़ जाता है, आप प्रॉपर सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करते हैं, आपकी स्पीच जो है वो ईगोसेंट्रिक नहीं रहती। यहाँ पे चाइल्ड जो है अपना नॉलेज जो है उस चीज के ऊपर बेस करता है कि वो क्या फील कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो सही है या नहीं है, लेकिन व्हाट ही इज फीलिंग ही फील्स दैट इज द ट्रूथ, ठीक है। लेकिन उनको उनकी फीलिंग और उनकी सेंसेस के कोई लॉजिकल रीजंस नहीं होते, उनको अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स समझ नहीं आ रहे होते, बट दे डू थिंक कि जो मैं फील कर रहा हूँ वही सच है, ठीक है। अब इधर जो फीचर्स हैं डिफरेंट स्टेज के, दे आर नंबर 1 इज ईगोसेंट्रिज्म, जिसकी बेसिस पे हमने 2 अपनी सब क्लासिफिकेशन सब स्टेजेस को डिफाइन किया है। ईगोसेंट्रिज्म इज बेसिकली कि उसके जितने भी कम्युनिकेशंस हैं, उसकी थॉट्स जो हैं वो अपने बारे में सोचते हैं या फिर वो अपने ही रेफरेंस स्केल्स को यूज करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आई कांट सी यू, इसका मतलब है यू कांट सी मी एज वेल। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे एकदम से आंखें खड़े हो जाते हैं, अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं एंड दे थिंक के आप उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि वो आपको नहीं देख पा रहे। ये बच्चे गेम प्ले करते हैं बहुत ज्यादा, अगर आपने घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। यानी कि इट इज द इनएबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवन्स एल्सेस आई, वो कोशिश उनका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, वो अपने आप को एक रेफरेंशियल पॉइंट रखते हैं, वो किसी और के जाविये से दुनिया को नहीं देख सकते, ना ही दुनिया को वो एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड वन इज एनिमिज्म। एनिमिज्म इज बेसिकली लाइक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप एज लिविंग वंस करते हैं, यानी कि बच्चे जो है वो अपनी डॉल्स के साथ खेलते हैं एज ए दे आर अलाइव, उनके साथ ड्रेसअप खेलेंगे, उनके साथ वो जिस तरह यू कैन सी इन द पिक्चर राइट है कि ये जो आपकी पिक्चर नजर आ रही है यहाँ पे, लाइक अच्छा गर्ल इज प्लेइंग विद टेडी बियर, उसको साथ वो टी पार्टी कर रही है एक, तो दिस इज द वन काइंड ऑफ एग्जांपल कि वो अपनी डॉल्स के साथ बातें भी कर रहे होते हैं, अपने टॉयज के साथ, वो उनके साथ खेल भी रहे होते हैं, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को अपनी दे स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज लिविंग वंस। ओके, थर्ड वन इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अब हम लोगों को, आपको याद होगा कि आपको हम बात करते थे जब परसेप्शन में, तो हम परसेप्शन में एज अ होल परसेप्शन की बात करते थे। जो चाइल्ड एट दिस स्टेज एग्जिबिट्स कंसंट्रेशन, यानी कि वो किसी एक एलिमेंट, किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर अपना जो स्टिमुलस प्रोवाइडेड होता है उसके किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन को लिमिट कर देता है और बाकी एस्पेक्ट्स को वो इग्नोर करता है। ये आपकी कंसंट्रेशन है। अब कंजर्वेशन इसके बरअक्स क्या है कि इट इज द नॉलेज की क्वांटिटी जो है वो अरेंजमेंट से रिलेट नहीं करती। अब अगर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए तो उस टाइम पे बच्चा ये चीज समझ जाता है कि किस तरह से आपका अगर 2 ग्लासेस हैं उनके अंदर मैंने अगर 50 ml वाटर डाला है
तो बड़े ग्लास के अंदर वो छोटा नजर आ रहा है अगर, तो और छोटे ग्लास में अगर वो ज्यादा नजर आ रहा है, तो डज नॉट मीन कि उसकी क्वांटिटी बड़े ग्लास में कम है पानी की। इट मीन्स कि दोनों ग्लासेस सेम है, लेकिन जो साइज है ग्लास का वो डिफरेंट है। तो दिस इज कंजर्वेशन कि अगर आप बड़े ग्लास या छोटे ग्लास में से बड़े में डालेंगे तो पानी कम नहीं हो जाएगा, सिर्फ स्पेस अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि वो कम फील होगा कि कंजर्वेशन है। लेकिन इस स्टेज पे अभी चाइल्ड में कंजर्वेशन नहीं होती, वहां पे कंसंट्रेशन होती है। चाइल्ड इग्नोर्स द बिगर पिक्चर, वो किसी एक एलिमेंट पे फोकस करते हैं। यानी कि अगर आप किसी छोटे ग्लास में से बड़े ग्लास में से पोर आउट करेंगे पानी, द चाइल्ड विल फील के पानी कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसने स्पेस इस तरीके से लिया कि उसका लेवल जो है वो प्रीवियस फुल ग्लास था अगर, तो वो हाफ ग्लास फुल है, तो बच्चा फील करेगा कि पानी का क्वांटिटी कम हो गया। तो वो अभी कंसंट्रेशन की फेज पे है, उसका कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। देन वी हैव थर्ड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ना अब ये स्टेज जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। यहाँ पे आप अर्ली एडोलेसेंस में एंटर हो रहे होते हैं, यू आर एंटरिंग योर टीनेज, और इस टाइम पे आपकी जो बॉडीली डेवलपमेंट है वो काफी रैपिड होती है स्टेज के बाद। तो आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट या आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो काफी रैपिड होती है ड्यूरिंग दिस फेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपकी सारी की सारी जितनी भी लॉजिक्स हैं, आपकी इंटेलेक्ट है, वो सारा एक, इसको आसान तरीके से अगर आप समझे तो कॉन्क्रीट फॉर्म में आती है। The first one is the first process that occurs during this stage is seriation, यानी कि आप सीरियल वाइज चीजों को रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं, आप उनको ऑर्डर करना सीखते हैं। यू कैन सॉर्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं आप लोगों को एक बच्चे को, इस एज के बच्चे को, नॉट आप लोगों को नहीं, बच्चों को मैं अगर डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट्स दूं और मैं उन्हें कहूं कि इनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन टू द बिगेस्ट वन टू द लार्जेस्ट वन, आपने अरेंज करना है, तो वो सीरीज वाइज वो बच्चा उसको अरेंज कर देगा। ठीक है, तो आप इस तरह की डिफरेंट उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। फिर उनके अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर मैं एक बच्चे को दिखाऊं जो मैं फॉर एग्जांपल 5 पेबल्स है, मैं उनको क्लस्टर टुगेदर करके रख दूं और फिर मैं उनको अलग अलग करके रखूं, तो इसका ये मतलब मैं उनसे पूछूं कि अब क्या आपको लगता है कि पेबल्स ज्यादा हो गए हैं बिकॉज दे आर टेकिंग अप मोर स्पेस, तो बच्चा समझेगा इस बात को कि नहीं, द नंबर ऑफ पेबल्स इज द सेम, जस्ट उनकी अरेंजमेंट अब चेंज होंगे। तो दैट इज लाइक कि वो जो कंजर्वेशन का प्रोसेस है उसको वो समझ जाएगा, कंसंट्रेशन से हटके कंजर्वेशन की तरफ आ जाएगा। Then transitivity, the ability to recognize logical relationships among elements in a serial order, यानी कि जिस तरह हम बात करते हैं आपकी डिफरेंट किस्म की, फॉर एग्जांपल a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको समझना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह a plus, if a is taller than b and b is taller than c, then a must be taller than c। इस तरह की डिफरेंट किस्म की जो रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में, लॉजिकली उनको समझना स्टार्ट कर देता है बच्चा। देन क्लासिफिकेशन, अब इस एज में बच्चा क्लासिफाई करना शुरू करता है कि कौन सी चीजें बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स एक साथ ग्रुप टुगेदर की जा सकती है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दी है कि देयर इज अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड डॉग्स, देयर इज आल्सो अ क्लास कॉल्ड एनिमल्स। ठीक है, अब उसको ये पता है कि सारे डॉग्स जो हैं दे आर एनिमल्स, लेकिन सारे एनिमल्स जो हैं वो डॉग्स नहीं है। ठीक है, सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट डॉग्स, उसको वो सेपरेटली रिकग्नाइज करता है और उसको ये समझ आती है कि डॉग्स आर आल्सो एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर इंक्लूड होंगे डॉग्स भी। तो दे कैन क्लासिफाई थिंग्स ऑन बेसिस ऑफ द कॉमन फीचर्स दैट दे अंडरस्टैंड। देन डिसेंटरिंग, the ability to take multiple aspects of a situation into account. For example, the child will no longer perceive an exceptionally wide, अच्छा जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अगर मैं किसी, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट जो कंफ्यूजिंग है, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू इजी इन एन इजी वे, कि एक बच्चे के पास अगर एक छोटा कप है और वो बहुत कुशादा है, ठीक है, यानी कि प्याला है एक, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, पानी डाला हुआ है सॉरी, और एक छोटा कप है जिसके अंदर उतना ही पानी डाला गया हुआ है लेकिन उसमें पूरा आ चुका हुआ है। एक लंबा कप है, एक ग्लास है, एक प्याले और ग्लास के अंदर अगर पानी रखा गया, तो अगर वो इस चीज को ये समझे कि वो क्योंकि वाइड है तो उसके अंदर पानी ज्यादा आता होगा, तो वो डिसेंटरिंग का प्रोसेस हो जाता है। उस बच्चे को ये चीज समझ आ जाती है कि दोनों में पानी की क्वांटिटी सेम है। ठीक है, कंजर्वेशन बेसिकली हैज द सेम काइंड ऑफ आइडिया एज वेल, लेकिन वो अरेंजमेंट और अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। डिसेंटरिंग इज लाइक कि वो अपनी परसेप्शंस जो है उनको अलाइन करना सीख जाता है। देन रिवर्सिबिलिटी, के यानी कि नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट चेंज किए जा सकते हैं लेकिन उनको वापस उनके ओरिजिनल स्टेट में भी लेके जाया जा सकता है। यानी कि 2 + 2 = 4, 4 - 2 = 2, 4 + 4 = 8 and 8 - 4 will be 4 again, यानी कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है। यानी कि आप एब्स्ट्रैक्टली आप कॉन्सेप्ट्स की जो मैथमेटिकल, बेसिकली आपके एनालिटिकल, अर्थमेटिक और मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं।
कंजर्वेशन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, एंड देन ईगोसेंट्रिज्म खत्म हो जाता है. द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ सीइंग अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव एज वेल. वो डिफरेंट चीजों को दूसरे लोगों के जाविये से देखना शुरू कर देता है. द चाइल्ड परफॉर्म्स ऑपरेशंस, यानी कि वो जो बेसिक आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, कंबाइनिंग, सेपरेटिंग, मल्टीप्लाइंग, रिपीटिंग एंड डिवाइडिंग, इनको परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज 12 years एंड अबव. अब एडोलेसेंस और एडल्टहुड में आपकी बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, आपकी बॉडी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही होती है, आप पुबर्टी को अचीव कर रहे होते हैं, आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑलमोस्ट सारे अचीव हो रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली इन सच अ वे आपकी इमोशनलिटी, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत रैपिड होती है, एंड आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो इस टाइम पीक पे होती है. तो द थॉट बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट. आप इस तरह की फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड में ही बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं, आप सिस्टमैटिकली चीजें करना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीरीज फॉलो करना आपके लिए आसान हो जाता है. आप स्टेप्स में हर चीज को करना जो है उसको सीख जाते हैं. देन आप उनको लॉजिकल और मेथोडोलॉजिकल वे में करते हैं. जिस तरह हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो आपके अलजेब्रा के सम्स है फॉर एग्जांपल, यू डू अंडरस्टैंड कि इनका एक लॉजिकल पैटर्न है, सिस्टमैटिकली है, उसको हर स्टेप जो है उसका एक प्रॉपर मेथड है, आप उस तरीके से करते हैं. जस्ट गिविंग यू अ नॉर्मल एग्जांपल. देन दे डू अंडरस्टैंड कि कोई चीज भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज रिलेटिव है, यानी कि हर कोई चीज फुल नहीं है, यानी कि नथिंग इज लाइक एब्सोल्युटली इटसेल्फ, हर चीज जब आपस में रिलेटेड है. देन दे डेवलप स्किल्स, यानी कि उनकी लॉजिकल थॉट आती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग सीखते हैं, उनकी सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है, दे अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ एनी गेम. या सोशल सिस्टम जो है वो इंसान का बनाया हुआ है, उनके आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक है, एंड इसके अंदर चेंजेस और मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं. बच्चा अडेप्ट करना सीखता है रोल्स को, वो आइडेंटिफाई करता है एज हिज जेंडर, ठीक है, और द चाइल्ड वे ऑफ थिंकिंग इज लाइक मोस्ट एडवांस्ड, और वो नॉलेज को बहुत रैपिडली गेन करता है, बहुत रैपिडली अडेप्ट करता है, उसके साथ अकोमोडेशंस होती हैं और वो चेंजेस लेके आता है. तो आपकी अगर मैं इसका एक रिकैप कर लूँ कंप्लीट, तो आपका जो पूरी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन 4 स्टेजेस, जिसके अंदर आपके पास आती है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन. आपका जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो बच्चे की फर्स्ट लाइक बर्थ से लेके 2 years तक है. यहाँ पे बच्चा जो है वो रिफ्लेक्सिव एक्शन से निकल के सिंबॉलिक एबिलिटीज या लैंग्वेज डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेजेस में आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की फर्स्ट स्टेजेस में आता है. सेकेंड स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करता है. देयर ही स्टार्ट्स डेवलपिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, वो वर्ड्स और इमेजेस को यूज करना शुरू करता है. बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज द चाइल्ड हैज फुली डेवलप्ड हिज लैंग्वेज, उसकी बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं, वो इगोसेंट्रिक होता है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर होती है, नॉट ऑन होल्स. जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा अपने आप से, इनर सेल्फ से आउटवर्ड वर्ड को, आउटवर्ड जो उसकी दुनिया है उसको रिकग्नाइज करना स्टार्ट करता है, ऑब्जेक्ट्स को सीरियल वाइज रखना स्टार्ट करता है, लॉजिकल रिलेशनशिप समझना शुरू कर देता है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करता है, अपनी ऑब्जेक्ट्स को फीचर्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन ज्यादा आसान से कर सकता है. ईगोसेंट्रिज्म खत्म हो जाता है. द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स एंड प्रैक्टिसेस रिवर्सिबिलिटी. उसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा इजीली वो बच्चे के अंदर समझना शुरू कर देता है. देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है, इट कंटिन्यूज फ्रॉम 12 years एंड ऑनवर्ड्स. यहाँ पे बच्चा लॉजिकल थॉट करता है, डिडक्टिव रीजनिंग्स उसकी डेवलप होती हैं, और बच्चा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देता है, वो आपकी सोसाइटी के डायनामिक्स को समझना शुरू कर देता है, और वो स्किल्स डेवलप करता है इस टाइम पे, जो कि एड करती हैं थ्रू आउट हिज लाइफ. This was all that you needed to know about Piaget's theory of cognitive development.